ان کے لیے گرمی اور پانی کی کمی کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں کی صحت مزید بگڑ جاتی ہے اور وہ کم عمر میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بقا کی امید ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں اور زمینوں کو چھوڑ کر شہر کی طرف بہتر زندگی کی تلاش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا وقت پر نہیں آتی تو خشک سالی کا چکر شروع ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کنویں سوکھ جاتے ہیں اور آسمان سے جھلکتی ہوئی بوندوں کی امیدیں آنکھوں میں ہی دم توڑنے لگتی ہیں۔ یہ ان کی نسلوں کا سفر ہے، جہاں ایک نسل نے جو مشکلات جھیلی ہیں وہی مشکلات ان کی اگلی نسل کو بھی منتقل ہوتی ہیں اگر کوئی پائیدار حل نہ نکالا جائے۔ اس تسلسل نے لوگوں کی سوچ اور ان کی طرز زندگی تھر کی زندگی کی کہانی میں سب سے اہم کردار وہاں کی خواتین کا ہے، جو صرف گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتی بلکہ وہ بقا کی جنگ میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں زندگی کیسی ہوگی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کا وجود بارش جیسی غیر یقینی چیزوں پر منحصر ہے، جہاں پانی کا ایک ایک قطرہ امید کی کرن ہو اور اس کی عدم موجودگی موت کا پروانہ؟ یہ کوئی ڈسٹوپین فلم نہیں، یہ پاکستان کی سب سے سخت ماحول تھر پارکر کی حقیقت ہے، جہاں زندگی کی بقا روزانہ کی ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں سب سے آگے اور مضبوط کھلاڑی تھر کی خواتین ہیں۔ تھر پارکر، جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، دراصل ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 19,638 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ کئی چھوٹے شہروں اور دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی زمین زیادہ تر ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہے، جنہیں مقامی لوگ بھٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیلے مسلسل ہوا کے ساتھ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں اور یہ علاقہ بھارت کے سرحد سے بھی ملتی ہے۔ تھر پارکر کی سب سے بڑی انفرادیت اس کا پانی کا مسئلہ ہے۔ یہاں پانی کی سطح بہت گہری ہے، جو کہ تقریباً 200 سے 300 فیٹ نیچے ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی اس کی گہرائی میں موجود ہے وہ زیادہ تر نمکین ہوتا ہے اور پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ پینے کے صاف پانی کے لیے لوگ بہت زیادہ گہرے کنویں کھودتے ہیں یا دور دراز علاقوں سے پانی لاتے ہیں، اور یہاں کی زندگی کا پورا انحصار بارش پر ہے، لیکن یہاں پر بارشیں بہت کم اور غیر یقینی ہوتی ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی فصلیں اگاتے ہیں، لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس مشکل ماحول کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی بھی بہت مختلف ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے موسم کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، جسے مقامی زبان میں لوگ روحی کہتے ہیں۔ تھر کی زندگی کی کہانی میں سب سے اہم کردار وہاں کی خواتین کا ہے، جو صرف گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتی بلکہ وہ بقا کی جنگ میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ تھر کی عورتیں روزانہ کئی میل تک پیدل سفر کرتی ہیں، اپنی سروں پر پانی کے برتن اٹھائے، صرف اس لیے تاکہ ان کے خاندان کو پینے کا صاف پانی مل سکے۔ یہ کام بہت مشکل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف پانی لاتی ہیں بلکہ کھانا پکاتی ہیں، مویشیوں کا خیال رکھتی ہیں اور پورے خاندان کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ روزمرہ کی جدوجہد میں گزر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرکزی کردار کیوں ہیں؟ دراصل تھر کی معیشت اور بقا کا دار و مدار انہی خواتین کی محنت پر ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کندھوں پر ایک ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں جو شاید ہم میں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس سخت ماحول میں بچے اور بوڑھے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور موسمی حالات، بیماریوں اور غذائی قلت کا سب سے زیادہ شکار بنتے ہیں۔ آلودہ پانی اور ناقص خوراک کی وجہ سے بچے ہیضہ اور نمونیا جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تھر میں بچوں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ بہت سے بچے، خاص طور پر بچیاں، پانی لانے میں اپنی ماؤں کی مدد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پاتے۔ اسی طرح وہ نہ صرف صحت بلکہ تعلیم کے حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے افراد اکثر خشک سالی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیماریوں جیسے کمزوری، خون کی کمی اور دیگر طبی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے گرمی اور پانی کی کمی کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں کی صحت مزید بگڑ جاتی ہے اور وہ کم عمر میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھر پارکر میں شدید قحط صرف بارش نہ ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیچیدہ موسمیاتی، جغرافیہ اور معاشی مسئلہ ہے۔ مونسون کی بارشیں یہاں غیر یقینی اور غیر متوازن ہوتی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی
तो जमीन की सतह खुश्क हो जाती है और नीचे मौजूद पानी का जखीरा मजीद गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से कुएं खुश्क हो जाते हैं और पानी निकालना नामुमकिन हो जाता है। इस खुश्क साली से न सिर्फ इंसान बल्कि थर की मैशियत का दारोमदार जिन मवेशियों पर है वो भी बराह रास्त मुतासिर होते हैं। चारा और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से मवेशी मर जाते हैं, जिससे मकामी खानदानों का वाहिद जरिया आमदन भी खत्म हो जाता है। पानी की शदीद किल्लत और खुश्क साली के बराह रास्त नतीजे के तौर पर ग़िज़ाई किल्लत का बहरान पैदा होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं और खुराक की कमी आम हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत की रिपोर्टों के मुताबिक थर पार्कर में हर साल हजारों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और इससे मुतल्लिक बीमारियों जैसे नमूनिया, हैजा और दस्त का शिकार होते हैं। थर में बच्चों की शरह अमवात मुल्क के दीगर हिस्सों से कई ज्यादा है। ये आदाद शुमार सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि हर एक नंबर एक अल्पनाक कहानी सुनाता है, जहां वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए बेबस हो जाते हैं। कहत और पानी की कमी का मसला सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद नहीं बल्कि ये पूरे माशरती निज़ाम को मुतासिर करता है। ये खास तौर पर बच्चियों के तालीमी रुकावट पैदा करती है। थर में पानी की तलाश की जिम्मेदारी ज्यादातर खवातीन और बच्चियों पर होती है। जब एक बच्ची को रोजाना कई घंटे पानी लाने के लिए सर्फ करने पड़ते हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाती। खानदान अक्सर काम और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और पानी की कमी के असरात सेहत पर भी होते हैं। क्योंकि पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं और लोगों को जो भी पानी मिलता है वो इसे इस्तेमाल करते हैं। इस आलूदा पानी की वजह से हैजा, टाइफाइड और दीगर आबी बीमारियां आम हैं। पानी की कमी की वजह से बच्चों में खुराक की कमी पैदा होती है, जो कि बच्चों को कमजोर कर देती है, जिससे वो नमूनिया, दस्त और दीगर इन्फेक्शन का आसानी से शिकार हो जाते हैं। थर की मैशियत का दारोमदार ज़रात और मवेशियों पर है। खुश्क साली की वजह से दोनों ही तबाह हो जाते हैं, जिससे मकामी आबादी का रोजगार और आमदनी खत्म हो जाती है। जब बका की उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग अपने घरों और जमीनों को छोड़कर शहर की तरफ बेहतर जिंदगी की तलाश में हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो उनकी सकाफत और समाजी शनाख्त को भी नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसले अब तक क्यों बरकरार हैं? हुकूमत ने थर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए कोई बड़े मंसूबे नहीं बनाए। जो भी पानी के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो या तो नाकाफी हैं या सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी वाटर सप्लाई की स्कीमें सिर्फ कागजों में मौजूद हैं या इनकी देखभाल नहीं की जाती, जिसकी वजह से पाइपलाइनें टूट जाती हैं और पानी जाया हो जाता है। इसके अलावा थर में सेहत के मराकज और स्कूलों की कमी है और जो हैं उनमें भी सहूलियात पूरे नहीं हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में पानी को बहुत ज्यादा जाया किया जाता है। इसका एक वाज़ेह सबूत इंडस रिवर सिस्टम से निकलने वाली नहरें हैं, जैसे कि कालाबाग नहर, जो कि लाहौर और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों को पानी फराहम करती है, जबकि दूसरी तरफ थर जैसे इलाके पानी की कमी का शिकार हैं। ये एक ऐसा अदम तवाजुन है जिस पर पूरी तवज्जो की जरूरत है। हुकूमती सतह पर ऐसे बड़े तवील और मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए गए हैं जो थर में पानी को मुस्तकिल तौर पर जखीरा कर सके। यहाँ डैम्स और पानी के ज़ेरे जमीन ज़खायर की बहुत कमी है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी जैसे शमसी तवानाई से चलने वाले पंप या डिसैलिनेशन प्लांट, जो कि समुद्री पानी को मीठा बनाने का प्लांट होता है, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम है। थर में खुश्क साली और पानी की किल्लत का मसला आज का नहीं है, ये कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि थर की आबादी सदियों से इस तरह कहत और खुश्क साली का मुकाबला करते हुए आई है। कदीमी रिवायत और मकामी लोगों की दास्तानों में भी ऐसी कहानियों को जिक्र मिलता है जहाँ लोग बारिश के लिए दुआएं मांगते थे और दूर दराज इलाके की तरफ हिजरत करते थे। ये कोई 1 या 2 साल का वाकया नहीं, ये थर की तारीख का एक वो हिस्सा बन चुका है जिसकी वजह से यहाँ के लोग अंदर से मजबूत और मुश्किल हालात से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। थर की तारीख में कई बड़े कहत रिकॉर्ड किए गए हैं। खास तौर पर 1980 और 1990 की दिहाइयों में शदीद कहत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। लोग साल साल इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करते आ रहे हैं और हर दफा जब बारिश नहीं होती तो इस मुश्किल का दोबारा सामना होता है। ये उनकी जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। ये उनकी नस्लों का सफर है, जहाँ एक नस्ल ने जो मुश्किल झेली हैं वही मुश्किलात उनकी अगली नस्ल को भी मुंतकिल होती हैं अगर कोई पैदार हल ना निकाला जाए। इस तसलसल ने लोगों की सोच और उनकी तर्ज जिंदगी को भी बदल कर रख दिया है। वो हर वक्त आने वाले कहत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं। थर में जिंदगी का दारोमदार मानसून की बारिशों पर है। ये बारिशें हर साल में एक मखसूस वक्त पर आती हैं और पूरे इलाके को हरा भरा कर देती हैं। रेत के टीले सब्ज हो जाते हैं, मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब होता है और लोग गंदम और बाजरा की फसलें उगाते हैं। ये वक्त खुशी और उम्मीद का होता है जब हर चेहरे पर सुकून होता है। और जब ये बारिशें गैर यकीनी हो जाती हैं या वक्त पर नहीं आती तो खुश्क साली का चक्कर शुरू हो जाता है। फसलें तबाह हो जाती हैं, कुएं सूख जाते हैं और आसमान से झलकती हुई बूंदों की उम्मीदें आंखों में ही दम तोड़ने लगती हैं और जमीन की तरह लोगों के दिल भी खुश्क होने लगते हैं। ये वो वक्त है जब खुशी का रंग फीका पड़ता है
और जिंदगी की जंग एक नई सिरे से शुरू हो जाती है। खुश्क साली की वजह से खाने और पानी की कमी होती है। इससे ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियां फैलती हैं, जिससे बच्चों और बूढ़ों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। ये वो लम्हा होता है जब थर के लोग अपनी तमाम बचत और मवेशी फरोख्त करके भी इनको नहीं बचा पाते और इन्हें समझ आ जाता है कि उनका अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं। जब हालात खराब हो जाते हैं तो यहाँ के लोग अपने घर मवेशी छोड़कर शहर की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि अपनी जमीन, अपनी सकाफत, अपनी रिवायत को पीछे छोड़ना है। जब बारिशें दोबारा आती हैं तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर अगले साल बारिश का इंतजार करते हैं। ये चक्कर साल ब साल चलता रहता है, जिससे लोग कभी भी मुस्तकिल जिंदगी नहीं गुजार पाते। ये साइकिल थर की जिंदगी का एक कड़वा हिस्सा बन चुका है। जब भी थर में खुश्क साली की खबरें मीडिया पर आती हैं, तो हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें जैसे इंजोस आर्जी मदद के लिए फौरी इकदाम करती हैं, जैसे राशन के थैले और आटा तकसीम करते हैं ताकि लोग भूख से ना मरे। दूर दराज इलाकों में पानी के टैंकर्स भेजे जाते हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके, और आर्जी तिब्बी कैंप्स लगाए जाते हैं और मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं। ये इकदाम बेशक फौरी तौर पर जरूरी होते हैं, लेकिन ये मसले को जड़ से खत्म नहीं करते। ये सिर्फ एक आर्जी पट्टी की तरह होती है जो एक जख्म को ढांप देती है, लेकिन इसे ठीक नहीं कर पाती। जैसे ही ये मुद्दत खत्म होती है, लोग दोबारा इसी मुश्किल में फंस जाते हैं। ये मुस्तकिल का हल नहीं, बल्कि एक सालाना रिवायत बन चुकी है। आखिर इस मसले का पैदार हल क्या है, जो कि थर के लोगों का हक भी है? हुकूमत और एनजीओज को चाहिए वो शमसी तवानाई से चलने वाली ट्यूबवेल और पंप लगाए। थर में साल भर तेज धूप होती है, जो इस तवानाई का बेहतर जरिया है। सोलर पंप लगाने से कुओं से पानी निकालना बहुत आसान और कम खर्च हो जाएगा। लोगों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी नहीं लाना पड़ेगा और घर पर ही पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा। ये न सिर्फ खवातीन का बोझ कम करेगा, बल्कि उनके वक़्त की भी बचत होगी, जिससे वो दूसरे काम कर सकेंगी। थर में जब बारिशें होती हैं तो इसका ज्यादातर पानी रेत में जज़ब हो जाता है या जाया हो जाता है। इस पानी को जाया होने से बचाने के लिए हुकूमत को जेरे जमीन बड़े तालाब, इस तरह जब बारिशें होती हैं तो वो पानी साल भर के लिए जमा हो जाता है और खुश्क साली के वक़्त में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो पूरे इलाके की जिंदगी बदल सकती है। थर के लोगों को सिर्फ इमदाद नहीं, बल्कि तालीम और हुनर की भी जरूरत है। इन्हें जदीद ज़राअत के तरीके सिखाए जाएं जो कि कम पानी में कामयाब हों, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, और इसके साथ साथ इन्हें सेहत और सफाई के बारे में भी आगाही दी जानी चाहिए ताकि वो आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों से बच सकें। ये एक ऐसा हल है जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। जब वो खुद कमाना सीखेंगे और अपनी सेहत की देखभाल कर सकेंगे तो इन्हें इमदाद की जरूरत नहीं रहेगी और न ही इन्हें भीख मांगने की बजाय एक बावकार जिंदगी जीने का मौका फराम करेगा। ये उनका हक है और इन्हें भी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बुनियादी सहूलतें मिलें। थर पार्कर की कहानी सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, भाईचारा और बका के जज्बे की एक सच्ची दास्तान है। ये हमें सिखाती है कि किस तरह एक नामुमकिन माहौल में भी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। थर के लोग बेपनाह मुश्किलात के बावजूद भी एक दूसरे का साथ देते हैं और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इनकी कहानी मैं सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे महसूस करने और दिल से समझने की जरूरत है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात फराम करना नहीं, बल्कि आप लोगों को अमल करने के लिए मुतहरिक करना है। ये सिर्फ उनकी जंग नहीं, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।